नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज परीक्षित चोपड़ा जी हैं। केडीसी नाम से इनकी प्रॉपर्टी की एजेंसी है। ये बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी की नॉलेज रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि एक साधारण इन्वेस्टर मेरे और आप जैसा अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो क्या गलतियां कर सकता है, क्या उसे समझना चाहिए कितना उसे ध्यान देना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे क्या करना चाहिए। आइए समझते हैं परीक्षित जी से और इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। I'm a BNI member in Gurgaon for the अच्छा। past 10 years. हाँ। So we're a group of doctors, lawyers, chartered accountants. Which one? The first one, what is that? जो सबसे ऊपर सर लगा हुआ है ये देखिए, ये आकर्षण के लिए है. देखिए, it's a main attraction and each one of these is a lapel pin. अच्छा। So this one is for my particular group called Champions Gurgaon. हाँ So हाँ। this was given by a leadership team just जी। as a sense of belongingness for each and every That looks champion. very very attractive। हाँ हाँ Intent यही है सर हाँ हाँ कि it's a conversation starter. That's the हाँ intent. We want to start a conversation and we never know what a conversation can lead to. absolutely। So this is a forum. Forum हाँ। is stands for members make more money. अच्छा। So it's also the name of our annual event of BNI Gurgaon held once a year in March. अच्छा। So it is a rewards and recognition program. It has an exhibition also. I was just speaking with your team. In fact, I wanted to invite you and your team to come and join us at the BNI. You're welcome to come as visitors. For sure So sure। we are about 1,700 members in BNI Gurgaon and Faridabad, 31 groups. And every month we are doing documented business revenue of 120 crores. अरे वाह, बहुत बढ़िया। So, if you combine all the regions of Delhi South, Central, West, East, and Noida, still BNI Gurgaon is larger. That's also because most of the franchise owners of these regions are offshoots of BNI Gurgaon. BNI full form is? BNI stands for Business Networking International. अच्छा, बिजनेस नेटवर्क तो इंटरनेशनल। हमने कहा रियल एस्टेट तो हर कोई कर रहा है, बट हर कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट BNI मेंबर नहीं है. तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू हैव अ यूनिक एडवांटेज इन दिस. तो ये जो आपने ये शुरू करा BNI, इसके पीछे का मंशा क्या है? लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली इज द So this पर्पस is ऑफ actually दिस? an American organization. It started in 1985 by an individual called Dr. Ivan Meisner. He's the ओके। founder of BNI. तो जैसे रोटरी और लायंस क्लब बहुत पॉपुलर हुए हैं बिल्कुल इंडिया में, बिल्कुल। और मतलब हमारे फादर के ज़माने से रोटरी लायंस क्लब बहुत पॉपुलर है. So their agenda has been largely community service, helping the underprivileged, giving their donations, helping the poor people, helping old people. But BNI is slightly different. Our agenda solely is qualified business referrals to our fellow community members. And community is something which is very strong because even during COVID times, we are very supportive towards each other. तो मतलब जब सगे रिश्तेदार भी जवाब देना बंद कर देते हैं, उस टाइम BNI कम्युनिटी आपको हेल्प करती है. सो आई हैड वन ऑफ माय फेलो मेंबर्स, ही एक्चुअली वेंट. उस टाइम पूरा लॉकडाउन था, एयरपोर्ट्स वर शट डाउन, रोड एवरीथिंग वाज अंडर कर्फ्यू. तो वो खुद अपनी गाड़ी में बैठ के हैड अ स्पेशल पास. हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाइना से स्पेशल शिपमेंट आ रही थी उनकी. ही इज अ कॉपी गिफ्टिंग फेलो. अच्छा। So he got an oxygen concentrator. My driver followed him, and that was really needed for my family that time. अच्छा। My father is a doctor. He's a cardiologist. अच्छा। He has links in best of hospitals, best of pharma companies, pan India. He could not procure an oxygen concentrator, but my BNI friend helped me to procure that when it was needed the most. So that is something, that impression has stayed with me for a very long time. Then our COVID community task force was running across Delhi NCR with oxygen cylinders, blood transfusions, and we had a national task force where whichever members' families needed immediate support. So it was a slightly different time from the time we're living in right now, and our community was very supportive that Do you way. think COVID has given us some time to think? Yeah, it was definitely a reset button for everyone. A lot of learnings, and I think it was a different time for everyone, and the learnings have stayed on. And I hope we don't get to see such times again. Very difficult time for everyone. What are the okay? Let's ask you some professional questions. You're a professional, okay? What are the key factors you advise clients to consider before investing in any real estate? So I will say location is the most important factor, and So we two kinds must. of location: one where the building is, and then where your flat is. If somebody is buying a flat. Yeah, if they're buying a flat, but otherwise plots, villas, builder floors, apartments, bungalows, farmhouses, each one has a different orientation. Location is something universal to all of them. True. So location is the most important factor. We must check the track records of the developer, whether it's have delivered any projects in the past. Would you say that is most important thing to do? It's very important. Ignorance is not an answer. You cannot say हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं. We're living in a digital age. Information is at our fingertips across multiple AI platforms, multiple search engines. So saying कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, that is not an excuse, and that is actually a very lame excuse. So if we are not searching for what we are about to buy with our hard-earned lifetime savings, so we are actually committing a crime. So lack of information is actually the biggest crime you can commit. And if you're not searching information, I would also say one of the biggest crimes you can commit while buying a property is not consulting an advocate.
अच्छा So don't rely solely on even real estate consultant. It's a very big decision you're taking, especially if you enter into a resale transaction. So it's very important to hire an advocate of your confidence. Like, कई बार अगर आपकी you have actually sold property where the sale deed is missing, and it was a tough negotiation lasting nearly 10 to 12 months. कि seller बोलता है नहीं मेरी sale deed missing है, but registry तो हो ही जाएगी ultimately. It was a human error. गुम गई तो गुम गई. It's the most important document, sale deed conveyance deed. So that is something तो any सील seller. लीड निकल नहीं जाती नहीं? जो सर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलती है तहसील से, हाँ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलती है, बट द ओरिजिनल सेल डीड इफ इट इज मिसिंग, इट इज मिसिंग फॉरएवर. अच्छा एंड व्हाट हैपेंस इज द लीगल लूपहोल इज दैट सपोज गॉड फॉरबिड द सेलर हैज अ मैलिफाइड इंटेंशन, सपोज उनके घर में ही मिल जाती 20-30 साल बाद, सपोज द सेलर डाइज और उनके बच्चे अच्छा ले आए हो कोर्ट में, गेम बच्चे में ले हाँ आए हाँ कोर्ट में हाँ हाँ कि जी हमने तो वी नेवर वांटेड टू सेल द प्रॉपर्टी, सील तो हाँ हमारे पास ही. हाँ हाँ, सो दैट बिकम्स द लीगल क्लेम. अच्छा तब बायर गेम है क्या उसमें करेगा हाँ फिर? हाँ हाँ So that becomes a question mark. It's a legal loophole, हम्म, which a seller can take undue advantage of. So then normally a buyer will ask for an affidavit from the seller कि आपने you will have no further legal claim whatsoever. So that's very important to take, which is why it's important to consult all the legal scenarios, get a experienced qualified advocate. नया फ्लैट नई जगह पे ले रहा है बंदा, उसके लिए क्या सजेशन? जैसे नई बिल्डिंग बन रही है, जो एडवांस पैसे दे रहे हैं ज़्यादा के लोग, उसमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सजेशन फॉर दैट? मार्केट रिपोर्ट आप ज़रूर चेक करिए, हम्म मार्केट इंटेलिजेंस आप चेक करिए, और केवल इंस्टाग्राम और यूट्यूब मत देखिए. आई विल रियली रिक्वेस्ट, ऑल्दो वी आर इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग इज़ वेरी बिग थिंग. अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, किसी भी भाषा में देखिए, बट प्लीज़ रीड आर्टिकल्स. आप आर्टिकल्स पढ़िए जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ पब्लिश्ड हैं कि क्या रेलेवेंस है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स की जो है ना, दे आर प्लेइंग ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी. अगर आप देखेंगे आप इन्फ्लुएंस होंगे, 1-2 मिनट में अगर आप 4 के 5-6 करोड़ की चीज़ की वैल्यू समझ आ जाए वो गलत है. अगर आप सोचें कि वो सही है, पीपल आर टेकिंग बाइंग डिसीजन, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वो देख रहे हैं उसी बेसिस पे खरीद भी रहे हैं प्रॉपर्टी. पर आप अपने अंतरकाल में झांक के देखिए क्या आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं. अगर आप 5-6 करोड़ के अपने जीवन की जमा पूंजी लगा रहे हैं, कई कई परिवारों में तो ये 2-3 पीढ़ियों की जमा पूंजी होती है. बिल्कुल बिल्कुल अगर आप 5-6 करोड़ केवल एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियो देख के लगा रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं आप प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस करिए, आप गूगल पे सर्च करिए, एडवोकेट की सलाह लीजिए, आप सलाह मशवरा करिए. जो ड्यू डिलिजेंस की 40-50 साल की डॉक्यूमेंट की चेन है. अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, गो थ्रू एस्टैब्लिश सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कई सारे रिसर्च हाउसेज हैं, डेलॉयट, KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, प्राइस वाटर हाउस. इनकी मार्केट रिपोर्ट्स निकलती हैं कि कौन सा मार्केट सेफ है अभी और कौन सा स्टेबल है. आप इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे फ्रॉम वेरी वेल एस्टैब्लिश सोर्सेज, प्रॉपर्टी के कई शोज आ रहे हैं, उनके आप आर्टिकल्स पढ़िए. आई विल से, जैसे हमने शुरू में बात करी कि इग्नोरेंस नॉट एन एक्सक्यूज. मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा ऐसा कितने हुआ लोग था. ऐसे हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं? कितना परसेंटेज होगा जो ये बोलते हैं बाद में मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं था? देखो जल्दबाजी करना सबसे बड़ा मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए. और परसेंटेज वाइज तो ऐसे अंदाज़ लगाना मुश्किल है, पर कई बार लोग अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि जी हमारी किस्मत में नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है. ये तो आपने अपने मन को कहानी बताने के लिए बोले कि जी हमारी किस्मत में नहीं, हम जो भी लेते हैं वो बुराई नहीं करते. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप सही तरीके से रिसर्च करेंगे और डेवलपर्स की पूरी छानबीन करेंगे अच्छे से, रिसर्च मेन एक्सटेंट इज इन्फॉर्मेशन. और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है डेवलपर का, अगर आपके फंड रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, जो उनके आर्किटेक्ट्स हैं, मास्टर प्लान में जो फैसिलिटीज़ हैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, या कोई भी अगर प्लॉट, विला, बिल्डर फ्लोर, बंगलो या फार्म हाउस, तो आसपास की विसिनिटी ऐसी है. कई लोग इस एक्सटेंट तक भी चाहते हैं कि वहाँ एक ड्राइव करके आएंगे और कुछ पड़ोसियों से भी बातचीत जी जी करिए. जी जी वेरी ऑफन यू विल गेट इन्फॉर्मेशन. अगर आप गूगल सर्च तो कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट आप गूगल सर्च करिए यूज़र एक्सपीरियंसेस, यूज़र रिव्यूज़, बायर रिव्यूज़, ओनर रिव्यूज़, तो उस पर अलग दुनिया दिखेगी आपको. वो ऐसी दुनिया दिखेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था. ये भी तो एक सोल्यूशन हो सकता है कि रेंट पे ले लो वहाँ पे. लाइक जैसे मतलब आपको बड़ा मन है कि मुझे इस सोसाइटी में सो कॉल्ड रहना है, हाँ 90% लोग यही कर रहे हैं कि रेंट रेंट पे पे ले लो. लेते हैं, 1-1.5 साल पहले ले लेते हैं. 6 महीने पता चल जाएगी हाँ सोसाइटी पता तो. चल जाएगा, वो पूरी पल्स आपको एक से 2 महीने में पता चल जाएगी. और क्या क्या गैप्स हैं, देखो परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन प्लस पॉइंट्स एंड वी हैव टू लिव विद सर्टेन शॉर्टकम्स. हाँ. मुझे तो ये समझना है कि जैसे 2 तरह के प्लॉट्स हैं. एक है अथॉरिटी के प्लॉट्स, एक होते हैं जो उसके प्लॉट्स होते हैं जो गांव के प्लॉट्स होते हैं. विच वन इज बेटर? अथॉरिटी के प्लॉट अननेसेसरी सुपर महंगे होते हैं, गांव के प्लॉट सस्ते होते हैं पर वो बेवकूफ़ बनने के चांस ज़्यादा होते हैं. क्या करना चाहिए इंसान को? आपको देखिए हाई रिस्क हाई रिटर्न्स. आप
अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपके कौन है, कितना उनका एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई क्रिमिनल केस रियल एस्टेट कंसल्टेंट या बिल्डर के अगेंस्ट तो नहीं है, उस सेलर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब ऐसे तो कुछ नहीं बिकता। अगर वो जो अगर बिल्डर है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस देखना था, ठीक है, तो 0 फ्लैट बिकने चाहिए थे आप यहाँ। 10 लोग से बात हाँ, करेंगे, आपको हाँ, पता चल जाएंगी चीज़ें। बिकॉज अगर कोई ट्रेंड चला आ रहा है और अगर कुछ ना कुछ आपको लूपहोल मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ ना कुछ लूपहोल आपको या तो कंसल्टेंट का या लॉयर का या डेवलपर का, कुछ ना कुछ आपको ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा और वो ट्रेल बनता चला जाएगा। दैट ट्रेल, वो कहते हैं ना, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। तो कोई ना कोई अगर आपके इरादे में कहीं कोई शॉर्ट कमिंग है, तो वो आपके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और वो वेरी ऑफन आपका ट्रैक रिकॉर्ड, सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉपर्टी का बिजनेस अभी चल कैसा रहा है, मतलब लाइक इट्स स्टिल द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी, ऐसा लगता है आपको? See, in BNI, we come across, especially, even if without naming BNI or any networking platform or any community you're part of, essentially, I come across a lot of financial advisors. And देखा जाए, our end customer for a real estate consultant and for a financial advisor is the same. अच्छा, Given in common parlance, I will want to desell mutual funds, desell stocks to make a person buy property. But अच्छा। possibly that is not the right thing to do. हम्म। Other than that, I will be happy to collaborate with a financial advisor or mutual fund advisor. Because we have the same end customer, we can give them a bouquet of services and products. तो हम उनको बता सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, आप अगर आप शेयर मार्केट में चीज़ें लेते हैं, तो पास्ट ट्रेंड आपका 3-4 साल का ये है, ये रिटर्न मिला है। और प्रॉपर्टी में अगर आपने लिया है, अगर आपने 3-4-5 साल पहले लिया होगा, तो आपका ये ट्रेंड है। ये अप्रिसिएशन आप अगर आप कैलकुलेटेड वे में देंगे, मेथोडिकल वे में कस्टमर के सामने रखेंगे, सो वी कैन एक्चुअली लीवरेज द स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ द इंडस्ट्रीज। देखिए, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन, नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन। तो ये हमें कई सारे फोरम में भी सिखाया जाता है, दैट यू नो द क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि फाइनेंशियल मतलब रियल एस्टेट अगर आपको लेना है, सो इट्स अ वेरी क्लियर लाइन ऑफ एक्शन कि सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट इज मेड बाय पीपल लाइक यू एंड मी। हमारी क्या कॉन्वर्सेशन है और हमारा क्या सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है। जी जी। अगर आप मीडिया ही सारा कंज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ नेगेटिव है, दुनिया का अंत होने वाला है, बस खत्म है कहानी। वो भी है। सो दैट इज इट्स एसेंशियली वो भी माइंडसेट। चल रहा है, अगर हाँ। आप इन्फॉर्मेशन ही ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि आप नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एसेंशियली इट्स ऑल अबाउट द वे यू एंड मी आर आपको थिंकिंग। एक और सवाल बताइए, जैसे मैं एक टाटा का कोई प्रोडक्ट था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसका शेयर मार्केट 2013 में उन्होंने लॉन्च करा था, शायद टाइटन या आई डोंट नो नेम। तो 25 रुपये में एक शेयर बेच रहे थे वो, और 2023 में जब मैं देख रहा था तो शायद 3500 रुपये का एक शेयर था उनका उस समय। ठीक, तो आपको लगता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छे हो सकते हैं? प्रॉपर्टी आपको लगता है 2013 में अगर मैंने ली होती तो इतना इन्वेस्टमेंट, इतना रिटर्न दे पाती? सी, इट्स नॉट फेयर कंपैरिजन। कई लोग आई एम जस्ट अ लेमैन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी। हाँ, ऐसा है, हाँ, देयर हैव बीन लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज इवन इन प्रॉपर्टी मार्केट। सो इट्स नॉट फेयर टू जस्टिफाई कि स्टॉक्स में इतना रिटर्न आया, प्रॉपर्टी में इतना रिटर्न नहीं आया। If you consider, I myself, I have been born and brought up in South Delhi. So I live in an ancestral property in Kalkaji. So this property was taken, मतलब मेरे नानी जी के पिताजी थे 1964 में, उनकी रिटायरमेंट हुई थी। वो ब्रिटिश राज के टाइम कुछ नौकरी थी उनकी, और उस टाइम सब पहाड़ी थी आसपास, कोई आना नहीं चाहता था कालकाजी। कहते थे आउटर रिंग रोड जा रहे हैं, आउटर रिंग रोड तो जंगल है, कौन जाएगा आउटर रिंग रोड। So with property investment, you need a little bit of vision and foresight and a little bit of confidence in the kind of micro market. ट्रू ट्रू। अब वो बाबा जी कहते थे हमको, मेरे नानी जी पिताजी को, अगर उन्होंने उस टाइम सोचा होता कि मेरे पास पैसे तो इतने हैं, मैं लूँ कि ना लूँ, तो वहाँ पे मतलब वो 200 गज का मकान है हमारा, आज की डेट में हमें रेंटल इनकम ही वहीं से आ रही है, मेन रोड का मकान है। फिर मतलब सो कि इवन माई चिल्ड्रन आर बोर्न इन द सेम हाउस। अच्छा, तो ये वैल्यू है प्रॉपर्टी की, इट लास्टिंग मोर देन 4 to 5 जनरेशंस। और उस टाइम बताते हैं कि कालका जी के रेट जो थे वो GK1 और GK2 से ज़्यादा थे, क्योंकि GK1 GK2 लोग ऐसा मुझे फील होता है कई बार। हाँ मैं सच बताऊं, जैसे व्हेन आई गो टू GK1 GK2 एंड कालका, मुझे लगता है यार कालका जी पहले बसा होगा और कालका जी के रेट्स ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि कालका जी में लोग बहुत हैं। मतलब इट्स अ छोटी सी जगह पे मेनी पीपल, और खाने पीने की दुकानें इतनी ज़्यादा है कालका जी, मुझे लगता है ये पागल हैं क्या लोग, इतना क्यों खा रहे हैं भाई। लाइक कि मुझे कालका इसलिए, मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, वहीं रहती है अच्छा कालका अच्छा जी में। हाँ। तो हम लाइक कि क्या है ये, इतनी खाने पीने की दुकानें क्यों है भाई इस जगह पे? और वो मार्केट ऐसा बन गया है कि मतलब कॉलेज क्राउड है, हाँ, वो और जो एक कॉलेज है वहाँ पे, हाँ कॉलेज हाँ देशबंधु कॉलेज है, हाँ, वहाँ पे लोग इस देशबंधु। तरह के आते हैं कि थोड़ा बजट भी टाइट रहता है। हम्म। GK1 GK2 में रेंटल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, GK1 हैज बिकम अ ज्वेलर्स कार्टेल, GK2 में सैनिटरी वेयर का कार्टेल बन गया। तो वो आपस में ट्रेडिंग होती रहती है उनकी। अब सारी जो फूड ब्रांड्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, अब सबसे ज़्यादा सेल वहाँ चाट पकौड़ी वालों की है।
तो मार्केट का ट्रेंड है जो पॉपुलर सेंटिमेंट बन गया है। सो हैविंग सेड दैट कालका के रेट्स उस टाइम जीके 1 जीके 2 से ज़्यादा होते थे अगर हम हाँ 64 की बात करें। सो माय मदर वाज वेरी do you स्मॉल एज blame अ your चाइल्ड दैट टाइम। नाना जी that कि आई उधर एम क्यों वेरी नहीं गए? ग्रेटफुल टू हिम, आई एम वेरी नहीं ग्रेटफुल but टू हिम। don't you blame him कि जीके की तरफ क्यों अब नहीं उस निकले? टाइम जो स्ट्राइक कर गया, नोबडी हैड कंट्रोल ऑन दैट, ही कुड नेवर हैव थॉट अबाउट इट। बट आप वही देखिए कि कुछ जैसे इतनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं प्रॉपर्टी मतलब फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स में भी, कि कुछ शेयर्स फिजिकल शेयर्स लोगों के पास रह गए। इनफैक्ट आई विजिटेड अ बिजनेस फोरम इन बॉम्बे, सो वन पर्सन स्पेशलाइजेस इन कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर डॉक्यूमेंट्स इनटू डीमैट। अच्छा और कई बार वो 3-4 पुश्तों में स्टॉक तिजोरियों में से निकल रहे हैं शेयर डॉक्यूमेंट्स। सो दैट इज समथिंग, अगर वो आपकी किस्मत है और यू नेवर नो व्हाट द वैल्यू ऑफ दोस हम शेयर्स JP बी। Morgan का सुना था मैंने कि this guy his grandfather bought some JP Morgan shares and हाँ forgot about them and then he came to know that the shares were worth and this guy was poor हाँ his हाँ। shares were worth 140 crores हम्म। 140 crore rupees ये and he suddenly became rich हाँ नेचुरली ऐसी ऐसी हाँ मतलब मिरेकल स्टोरीज यू हियर इन द जी शेयर जी हाँ मार्केट्स, बट वेरी कैलकुलेटेड यू नो रिस्क रिटर्न रेशियोज इन रियल एस्टेट, इट्स डिफरेंट let me मार्केट। ask you another question like a layman और एक मेरे को आप गंवार मानिए इस मुद्दे पे कि भाई मेरे को जो चीज़ दिख रही है हाँ हाँ प्रॉपर्टी आई विल बाय दैट इट मेक्स मी फील सेफ हाँ गोल्ड मेरे को दिख रहा है आई विल बाय दैट इट मेक्स मी फील सेफ मैन मेड चीज़ें जो हैं लाइक मेक बिलीव कहना चाहूँगा मैं उनको आई वुड लाइक टू कॉल देम मेक बिलीव कि मान लो कि ये शेयर की वैल्यू 5,000 रुपए है यही हो रहा है लाइक देयर इज अ सिस्टम विच इज मेकिंग मी बिलीव ऐसा चल रहा है अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा भाई जो तेरे को दिख रहा है उसमें पैसे लगा ले क्योंकि वो तुझे तेरे आंखों के सामने की बात है अचानक से क्रैश हो जाए पता नहीं ये हो जाए और वो हो जाए तू सड़क पे आ जाएगा अगर तेरे पास लिमिटेड पैसे हैं तो मेरा ये क्या लिमिटेड पैसे हैं तेरे को मान ले 1 करोड़ रुपए तेरे जेब में आ गया हाइपोथेटिकली तू सोच रहा शेयर में लगा दूंगा इसमें कर दूंगा भाई किराए के मकान से बाहर आ एक घर ले ले अपने लिए मेरा ये मानना है अपने लिए एक घर ले ले एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी किराए का मकान अपना मकान तो मैंने सुना एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का भी इंटरव्यू लिया था रिसेंटली वो कह रहे थे मैं तो केवल किराए का मकान लेना चाहता हूँ घर खरीदना बेवकूफ़ी होती कि घर पे ये रिटर्न नहीं आता वो रिटर्न नहीं आता उतने पैसे में यहाँ पे इतना रिटर्न ऐसी बातें कर रहे थे वो बाद में 3 महीने बाद उन्होंने अपना मकान खरीद लिया फटाफट फिर उन्होंने अपनी बात बदल दी पता होगा आपको यहाँ शायद मैंने किसकी देखा था, बात कर रहा हाँ हूँ हाँ उन्होंने अपना घर खरीद लिया अपनी बिल्कुल, बकवास भी बदल डाली हाँ आपके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये बातें करते हैं क्या इन्होंने कभी किराए ऐसे व्यक्ति के मकान में किराए पे रहे हैं जो आके बोलता है नॉनवेज क्यों बना रहे हो भाई साहब हाँ हाँ हाँ। या तुम्हारी बेटी छोटे कपड़े पहनती है हमारे घर में लोग आते हैं भाई साहब कल सैटरडे है थोड़ा ऐसे रहिएगा डू दे इवन नो दीज थिंग्स व्हेन दे कॉल मी यंग पीपल इनसे कि घर मत खरीदो और XYZ में ज़्यादा मज़ा है ये करके देखो डू दे नो कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है किराए के मकान में और अपने मकान में मुझे इस मुद्दे को डिस्कस करना है आप बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे तो आपके सवाल में आपके जवाब भी छुपा है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपना मकान अपनी छत हो अपने रहन सहन की जगह हो, सो दैट कंजर्वेटिव थिंकिंग विल ऑलवेज आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। तो घर हमेशा होना चाहिए, छत नहीं होनी चाहिए, भले ज़मीन अपनी हो ना हो। अपार्टमेंट के भी बहुत दाम बढ़े हैं तो वी हैव टू स्पीक इन फेवर ऑफ अपार्टमेंट ऑल्सो, दैट विल बी द पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू डू। बट हैविंग सेड दैट कंजर्वेटिव थिंकिंग ये भी है कि जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप फील कर सकें, जो आपकी आंखों के समक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल तो वो आप देख सकते हैं, तो वो अपने नज़रिए में सही है। हैविंग सेड दैट you know we don't want the financial advisors to be totally against us, so it's a very strong market, very buoyant market, sentiment is very very positive, so just to be politically correct, stocks में बहुत से रिटर्न मिले हैं लोगों को, म्यूचुअल फंड्स, इवन माय फैमिली वी इन्वेस्ट whatever our savings in mutual funds, historically it has given returns, so to demean or to criticize one particular asset class, I don't think that's the right thing to do. So with all due respect for financial products, real estate, or even conservatively jewelry or gold or silver or bullion, so जो जिसको पसंद आ जाए, जो जिसके मन में जिस तरह की भावना है और जिसके साथ रहन सहन है, और वही है कि बात घूम फिर के वही आती है कि आपने कितना रिसर्च किया, कितनी आपने ज्ञान जिज्ञासु प्रवृत्ति कितनी रही आपकी, कितना आपने ज्ञान लिया इस चीज़ के बारे में, क्या रिटर्न हिस्टोरिकली आया है 4 5 6 10 साल में, 20 साल में, और क्या आपकी फैमिली में कंसेंसस हुआ। कई बार फैमिली में लड़ाइयाँ हो जाती हैं पैसे के ऊपर कि कहाँ लगाना है, किराए का मकान लेना है, खरीदना है, तो हस्बैंड वाइफ बच्चे और अगर बड़े बुजुर्ग हैं घर में, दादा दादी नाना नानी, सारे लोग एक ही पेज पे आए, वो अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, ट्रू क्योंकि डिसएग्रीमेंट होता है, और खासकर फाइनेंशियल एसेट क्लास में कहाँ लगाना है पैसा, सबका दृष्टिकोण अपना अलग अलग है।
तो कई बार मेरा सिर्फ इतना कहना है सर कि रोना मत बाद में। हाँ बिल्कुल वो बहुत जरूरी है कि भाई जो तूने क्या लिया, हाँ वो निर्णय तूने उस मोमेंट में लिया, रिसर्च किया नहीं किया, जो कुछ भी है, बाद में रोना मत कि भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये हो गई, चाहे वो कुछ भी करे। मेरा ये कहना है इसमें, क्या बोलते हैं आप? घर में जहाँ सहमति हो जाए, हाँ, जो आपके हाई कमांड एग्री कर जाए, घर में सुख शांति बनी रहे। रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बिल्कुल बिल्कुल बात। ठीक है, तो सुग्रीव कहते हैं रावण से कि अगर हम दोनों भाई मिल के रहेंगे तो हमारी जीत होगी। बहुत अच्छी बात की आप। एक इन्वेस्टर है प्रॉपर्टी को, उसके अप्रिसिएशन पोटेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ऊपर जाने वाला है? वो आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे भी मिलेगी, आपको गूगल पे भी, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सो यू विल गेट टू नो अबाउट टॉप 10 डेवलपर्स इन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जो भी माइक्रो बड़े मार्केट महंगे होते हैं वो टॉप 10 वाले, तो उसका क्या किया जाए? बड़े महंगे होते हैं वो हमेशा। जो टॉप 10 डेवलप, गोदरेज है, ठीक है, एटीएस है, एल्डिको है, ये हमेशा महंगे रहते हैं, मेरे बजट के बाहर जाते हैं बार बार। तो सोच आप बड़ी रखिए, आप कर्म इस तरह करिए कि आपका बजट बढ़े, हम्म, कर्म आप अपने सुधारिए और बजट बढ़ा ये के तो आप बड़ा ये तो बड़ा जनरिक सा जवाब, कर्म देखो ठीक करो देखो अपने। आप अपने इट इज़ अ माइंडसेट। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अगर वैल्यू उसकी लगे कि बहुत ओवर प्राइस्ड है, तो ऐसा नहीं है। लोग हैं मार्केट में जो एक्सेप्टेबिलिटी है प्राइस की। अगर आपको लग रहा है कि वो सोल्ड आउट हो रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई कहानी है कि इन्वेस्टर आ भी रहा है कि नहीं, मतलब इन्वेस्टर ही ले रहे हैं, एंड यूज़र तो कोई ले ही रहा। वो आपकी अपनी सोच है। आप देखिए कि पीपल आर एक्चुअली पेइंग इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में होके उस माइक्रो मार्केट की बुराई करिए आप। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। अच्छा जी। जो हो रहा है गलत हो रहा है, इट्स अनएथिकल थिंग टू डू। जिस मार्केट में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है इतनी ग्रोथ है, एंड अदर सिटीज डेवलपर्स आर डूइंग दिस, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, इतनी लॉबी है। वो कहते हैं हमारी सेल डाउन हो गई, आपका मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, आपकी बिक भी रही है चीज़ें, हमारी नहीं बिक रही। ऐसा हो रहा है, एंड दे विल डू एनीथिंग टू गेट दैट शेयर ऑफ द मार्केट। जो पैसा हिस्टोरिकली दूसरे शहरों में लग रहा था, अचानक ही अपने शहर में लगना शुरू हो जाए, तो किसी के प्लेट से निवाला छीन जाए, किसी को पसंद नहीं। तो ये गलत चीज़ें भी हो इन्वेस्टर्स रही की हैं। बात आप कह रहे थे, कैन यू प्लीज ओपन गूगल में लिखो ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक इज बाइंग अमेरिकन मिडिल क्लास प्रॉपर्टीज। अब ये ब्लैक रॉक वाले हैं, अमेरिका के सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं, उनके पास लगभग $10 ट्रिलियन के फंड्स हैं, वो मैनेज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50,000 घर खरीद लिए अमेरिकन मिडिल क्लास के। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं, अच्छा उनकी गेम है इसमें, इंडिया में टच, मुझे उम्मीद है सरकार कभी अलाउ नहीं करेगी इस तरह की हरकतों को। तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे मान लेते हैं ये घर है, ये पूरी प्रॉपर्टी है, इसमें अलग अलग घर हैं, तो वो ये घर खरीदेंगे, और इस घर की जो प्राइस है, लेट्स से इस घर की $3 लाख प्राइस है, सेम सेम एरिया के घर को वो $7 लाख में खरीदेंगे, ताकि पूरे एरिया का रेट $7 लाख हो जाए। ठीक है, और ये $7 लाख क्यों खरीद रहे हैं? उनका कोई उसमें वो नहीं है, उसमें उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि वो ये $7 लाख जैसे ही पे करते हैं, पूरी प्रॉपर्टी $7 लाख की हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी का जो रेट है, जो उस पे जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो आसमान छूने लग जाएगा। अब $3 लाख, $300,000 वाले बंदे को वो रेट पे नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, फिर वो दोबारा इन्हीं को बेच देगा वो। इसमें गेम ये है कि मेरा जो मॉर्गेज था पर मंथ का, हाइपोथेटिकली वो $1,800 आ रहा था। ब्लैक रॉक इस तरह की और कंपनियों का गेम ये है कि लोगों को किराए पे रखो, उनको अपना घर मत खरीदने दो, वो सबके सब रहेंगे। अब $2,500 किराया देंगे वो, जिस घर को वो ओन करते थे। अब $2,500 की हम बोल रहे हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स हम देंगे, टेंशन मत लो। इस तरह की संभावनाएं कितनी है भारत से। गुड़गांव में कोई फ्लैट 100 करोड़ का बिका, बाद में बात हुई तो पता चला एंड यूजर था ही नहीं वहाँ पे, सम बिग आई अधिकारीज एंड बिग पॉलिटिशियंस एंड इन्वेस्टर्स, उन्होंने खरीद लिए सारे फ्लैट्स। वो 100 करोड़ का बिका भी क्यों? दैट वाज अनदर क्वेश्चन, कैसे 100 करोड़ का बिका? भारत में इसकी कितनी संभावना लग रही है आपको कि लोग चाहेंगे कि प्रॉपर्टी ही ना ओन करे, नॉर्मल बंदा रेंट पे करे? आई विल से अ लॉट ऑफ दिस कम्स टू एजुकेशन। हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, एज अ सोसाइटी वी आर स्टिल वेरी कंजर्वेटिव। आज भी अगर आप देखें कि मकान लेने से पहले लोग अपने घर जीवन का सबसे बड़ा निश्चय, मतलब सबसे बड़ा निर्णय मानते हैं, तो घर में बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। और अगर आप देखें कि आवर इंडियन माइंडसेट इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न माइंडसेट। वी हैव पॉसिबली वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। जितना सोना भारत के परिवारों में है, वो हाँ, ट्रू पूरी ट्रू। दुनिया में कहीं नहीं है।
So by यूएस में 8,000 टन है शायद सोना हम्म, जो उन्होंने अपने उसमें रखा हुआ है हम्म, वॉल्ट्स में। भारत के घरों का सोना है तो 25,000 टन से क्रॉस कर बिल्कुल जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो वो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी क्यों है, क्योंकि हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं। फैमिली वैल्यूज़ कि हमें मेहनत करनी है, पढ़ाई अच्छी करनी है और पैसा बचाना है। खर्चने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। घर पे खर्चेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है घर में कि आप खर्चने से पहले सोचिए आपने निवेश कितना किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने। आई थिंक ये कल्चर का फ़र्क है। कल्चर जो यूएस में है, यूएस का है कि एक तो फैमिली वैल्यूज़ वीक है, दे डोंट कंसल्ट देयर पेरेंट्स, कम्युनिकेशन गैप बहुत है और ट्रू। घरों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं और उनको लगता है कि मेरा पैसा मैं चाहे जो करूँ बिना माई किसी से लाइफ माई पूछे, माई चॉइस। लाइफ माई चॉइस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कल्चर डिफरेंस है और चाहे मिलेनियल हो या जिनजी बोलो, आज भी पेरेंटिंग इतनी नहीं बदली कि बिना माँ बाप से पूछे हम कोई बड़ा निर्णय ले लें। हाँ, वो अलग बात है, कई बार कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं माँ बाप और बच्चों में, बट कंजर्वेटिवली आप देखें कि अभी भी माइंडसेट यही है कि आप निवेश पहले करें, खर्चा बाद में करें। आपके अगर कोई अगर बच्चा कमाना भी शुरू करता है, उसको बोलो बेटा पहले सारे पैसे मत खर्च दो, आप निवेश करो, आप अपने लिए इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ तरह का टर्म प्लान इंश्योरेंस लो, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। प्रोविडेंट फंड में डालो कुछ पैसे। और आज भी घरों में सिखाया जाता है कि कुछ पैसे दान भी करो। अगर आप बिल्कुल। दान नहीं करोगे, या हमारे रिलीजियस बिलीफ ही ऐसे हैं, तो ऐसी चीज़ें वेस्ट में नहीं हैं। तो वेस्टर्न मेंटालिटी भी वो खेल रहे हैं। आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट बैंक इतना बड़ा है, तो एक्चुअली जो आदमी पढ़ा लिखा है वो समझेगा कि अपने घर की ओनरशिप अपनी छत होती है। सो अगर आप देखें वहाँ पे जो एजुकेटेड वर्किंग क्लास एनआरआईज भी हैं, उनका भी इस जो फाइनेंशियल तरह से स्टोरी बनाई गई है कि आपको किराया भी कम लगेगा, मॉडल भी नहीं देना पड़ेगा, किराए पर आपके पैसे बचेंगे। सो इट इज़ एसेंशियली इस कहानी में भी कई सारे गुण ऐसे छुपे हैं कि आपका नुकसान ही हो रहा है देखा जाए तो क्योंकि जो भारतीय कस्टमर है वो समझता है इस बात को, तो वो अभी भी हमारी कुछ हैं, हाँ बड़े लिखे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए किराए पे रहिए और फिर जाके 2-3 महीने बाद अपना मकान ले लेंगे, तो उनके बारे में हमने सुना है, ये पढ़ा भी है उनके बारे में। बट मेंटालिटी लार्जली फैमिली वैल्यूज, स्पेंडिंग पैटर्न्स और इन्वेस्टमेंट, जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा दी जाती है फैमिली में, वो आज भी हमारी फैमिली वैल्यूज से आती है। बट डू यू अग्री कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हम्म, हैं मेनली किराएदार बना रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट, हम्म, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट यूज़ करिए, महीने का इतना दीजिए या साल का इतना दीजिए। हम्म, हम्म, गूगल, कि गूगल एक्स यूज़ करिए, महीने का इतना दीजिए, हम्म, है ना। या इंस्टाग्राम, अगर आपने उसके प्रोडक्ट यूज़ करे तो महीने का हमें इतना दीजिए। सो हम्म, एवरी वन इज एक्चुअली गेटिंग इन टू दिस रेंटल माइंड सेट कि रेंट मेरे को आते रहना चाहिए। उनका है कि महीने का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एप्पल वाला आपको फ़ोन बेच देता है, उसमें भी 50 चीज़ डालता है, ये खरीद लीजिए महीने का इतना आएगा, वो खरीद लीजिए, एप्पल क्लाउड ले लीजिए आप, महीने के 700 रुपये और दीजिए अपनी हम्म, ही फ़ोटो सेव करने के लिए, हम्म, है ना। हम्म, बॉटम लाइन है कि द एंटायर वर्ल्ड का जो गेम है वो किराएदारी पे चल रहा है कि भाई किराया कितना ले सकते हैं आप सामने वाले से। यूपीआई है, पे करने किराया दीजिए हमको। ठीक है, हम्म, तो ये जो सिस्टम जो शुरू हो रहा है, ये जो बिजनेस प्लान है बैकरॉक का, या आई एम श्योर इंडिया में भी बिजनेसमैन जाएंगे 10 साल 15 साल में इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि किराया लेना इज द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि हम्म, हर महीने बेचारा झक मार के मेहनत करेगा ताकि वो आपको किराया दे सके। हम्म, क्योंकि होम ओनर किसी को पसंद नहीं आएगा फ्यूचर हम्म, में, अगर जो बिग शॉट्स हैं जैसे अमेरिका में नहीं पसंद आ रहा है, हम्म, मुझे लगता है फ्यूचर में भी होम ओनर किसी को पसंद नहीं आएगा। पर लेट्स कम बैक टू योर द कोर ऑफ इट। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में किस तरह के इन्वेस्टमेंट आप रेकमेंड करेंगे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या ज़मीन खरीदने में? तो अगर आप देखें कि दिल्ली और गुड़गांव जैसे मार्केट में अगर आपका मेन एंड ऑब्जेक्टिव रेंटल रिटर्न है, तो डेफिनेटली कमर्शियल आप लीजिए। कमर्शियल और कमर्शियल में बहुत अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे। दुकान जो होती हैं। दुकान हो गई, यू कैन हैव अ बैंक प्रेमाइसेस, बैंक को अगर लीज आउट है जगह, तो रेंटेड प्रॉपर्टी ऑन आउटराइट परचेज भी मिलती है। हाँ, तो इस तरह के रिटेल ब्रांड्स में बहुत अच्छी कमाई है। अगर आप मॉल्स में दिखें तो कुछ लीडिंग ब्रांड्स हैं पर जो कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉल्स में तो बिकते नहीं हैं। चले ना, उनमें भी तो नुकसान भी तो हुआ कुछ लोगों तो को। चले भी बहुत है। वो बिल्कुल, बट जैसे अब जैसे हाइपोथेटिकली मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ग्रेट इंडिया प्लेस और मॉल ऑफ इंडिया का। ग्रेट इंडिया प्लेस में मैंने दुकान खरीदी, हम्म, चली 10-15 साल तो रिहायश रही। मॉल ऑफ इंडिया खुल गया, ग्रेट इंडिया प्लेस बैठ गई। हम्म। तो इसमें क्या समाधान है, समस्या क्या करना चाहिए था लोगों को? तो ये डेंजर साइंस आने दिख जाते हैं जब कंपटीशन आता है मार्केट में। हम्म, तो कंपटीशन स्टडी आप करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोटेट करिए। सो वी कैन नॉट से दैट एन एसेट क्लास इज नॉट गुड बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली कीप रीडिंग अबाउट कंपटीशन,
अगर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा प्लेयर आ रहा है मार्केट में, so better to start shifting your investments and keep recalculating and structuring your investment in such a manner that give you better returns. Commercial is always going to give you between 6 to 10% returns depending on the asset class, depending on location. ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, पर ईयर अच्छा। का रिटर्न हम कह रहे हैं। और अगर आप रेजिडेंशियल में देखें, 1.5 से 2% रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड है ऑन एन एवरेज इन मोस्ट इंडियन सिटीज़। यही रिटर्न आपको कुछ माइक्रो मार्केट्स हैं गोल्फ कोस्ट रोड पे या लटन वैली में, जहाँ पे ये रेंटल रिटर्न दिस कम्स टू 3 to 4% ऑल्सो। दुबई में एवरेज रेंटल्स आर बिटवीन 5-6%. So we are also touching that category. If we spend wisely, there are certain आप कह रहे हो 1 करोड़ की दुकान का किराया 5 लाख आ सकता है, 5% ना? आई डोंट थिंक सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ। बैंक्स में तो इतना आ जाता है, मतलब अच्छा, बैंक्स में बैंक्स को कितने लोग देते हैं प्रॉपर्टी अपनी? आप कमर्शियल बायर से मिलिए, वो कहेंगे हमें बैंक दे दो और कुछ मत दो, रिटेल हम नहीं लेंगे, भले तुम 10-12% दे दो रिटेल में। शॉर्ट रिटर्न का इतना चल नहीं रहा। आप रेडियो पे सुनिए हाँ ऐड, हाँ एक बिल्कुल। ही प्लेयर का ऐड आता है कुछ चैनल्स पे। हाँ हाँ वो ऐड ऐसा है कि गुड़गांव वाले ने सुना नहीं है उसका नाम कभी, और नोएडा में वही ऐड आ रहा है। वो पिछले 5 साल से वही ऐड सुन रहे हो रेडियो पे, हाँ चैनल्स के नाम भी आपको बता देंगे, सबको पता ही होंगे। वही नाम चले आ रहे हैं, वही बिक रहा है। और अगर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, देखो हमें रियल एस्टेट में जब हम सीखते थे किसी कंपनीज में, वो कहते थे अपने माल को अफीम की तरह बेचो। अफीम की तरह बेचोगे तो बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जिसका नहीं बिक रहा वही तो हल्ला मचा रहा है सही बात है। कि मेरा खरीद लो खरीद लो। जो आप देखो ना, जो बेस्ट खाने पीने का भी ब्रांड, वो रातों रात ही बिक रहा है। सही बात। आते हैं 3-4 घंटे में ख़त्म। It's a skill of the buzz you create. It's a skill of the marketing. It's a skill of the communication you have created. कि आपके शुभचिंतक कितने हैं, कितने कस्टमर हैं, आपकी कितनी लॉयल्टी। और एक्चुअली प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए ना। दैट्स ट्रू। प्रोडक्ट में दम है तभी रातों रात बिक रहा है। जिसका नहीं बिक रहा वो चाहे लाख हल्ला मचा ले, वो इतना 5 बड़ा साल ऐड दे रही हो, नहीं बिक रहा उसका। इतना बड़ा ब्रांड है गौर का यहीं हाँ। पे, और वो भी इससे अच्छी लोकेशन क्या होगी जो जो चार मूर्ति है यहीं पे नोएडा में। मतलब आप उनके जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें जाके देखिए, कुछ नहीं खुला है उसमें, और सुनता हूँ सब बिका हुआ है, लेकिन वहाँ पे मतलब महिलाओं को अकेले जाने डर लगना चाहिए, ये हाल है उसका। पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूँ मैं। इतना मतलब बीच में जैसे 50 दुकानें खाली तो उसमें एक दुकान खुली हुई है बीच में, अब पता नहीं क्यों खोल के बैठा हुआ है अपनी दुकान वो। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर तक पे और वो मॉल चालू हुए। एक तो उनका गौर सिटी मॉल है, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनकी, इसमें उन्होंने दुकानें बेची हैं। हमें भी ऑफर था खरीद बेचने का, हमने नहीं खरीदा था वहाँ पे। इट्स बिन कम से कम 7 साल से चालू है वो जो दुकानों वाला मॉल है उनका, ये हाल है उनका। तो मतलब मैंने वहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके मैं तो फंस गया यार, मतलब मैं क्या करूँ उसमें। तो अगर आप देखिए ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो मेनी डेवलपर्स आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन नोएडा गाजियाबाद, एंड वी नॉर्मली हम प्रॉपर्टी शूट्स करते हैं ना, तो हम उसी डेवलपर की बात करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज वी वर्क विद एवरीवन। सो इसी अगर आप देखें कि कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री बची है बिल्डर, किसी भी बिल्डर के पास, तो वो तो चाहेगा कि जल्दी बिक जाए ताकि वो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दे एंटर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इसी में आता है आपका जो आपका समय है ना एज अ बायर, कि आपने कितना रिसर्च किया, आपने ड्यू डिलिजेंस कितना किया, आप क्या फिजिकली जाके गए उस लोकेशन में, मौके पे दिखा आपने कि वहाँ कितने लोग हैं और दिन के किस टाइम पे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो आपको बस दिखेगी कनॉट प्लेस जैसे मार्केट में, दिल्ली वाले कनॉट प्लेस, दिल्ली वाले करोल बाग में, दिल्ली वाले GK1 में आप चाहिए, आपको पूरे समय लोग दिखेंगे। पर ऐसे आप आउटस्कर्ट्स में जाइए, गुड़गांव में, नोएडा में, कई कई लोकेशन ऐसे हैं जहाँ 4-5 बजे के बाद कोई नहीं दिखता। तो आप क्यों लेना चाहेंगे ऐसे? अगर आप बोल दें कि मैंने उसके कहने में आके ले लिया, तो वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। आपने पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं, उसने कह दिया, आपने मान लिया और बिना कुछ पढ़े लिखे साइन कर दिया। वो तो इग्नोरेंस नॉट एन एक्सक्यूज। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो ये है, ठीक है, तो उसने मुझे अब तक 3 जगह प्रॉपर्टी खरीदने से मना किया है। एक ये गौर वाला, विच आई एम थैंकफुल, और उसने जहाँ बाकी 2 जगह जहाँ उसने मना करा, आई हेट हिम फॉर दैट। अच्छा। क्योंकि वो 2 जगह आसमान छू रही हैं बिल्कुल, हाँ। राइट, एंड आई कुड सी दैट पोटेंशियल। आई टोल्ड हिम एज वेल कि आई थिंक पोटेंशियल बहुत तगड़ा है यहाँ पे, बट ही कन्विंस्ड मी अदरवाइज कि पोटेंशियल तो है पर ये केवल 30% कमर्शियल है, तोड़ देगा अथॉरिटी किसी दिन आके। ठीक है, अब वहाँ रेड टेप की दुकानें खुल गई हैं, क्रोमा खुल गया है। हाँ। आप समझ रहे हो ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन सोचो मेरी किस लेवल की होगी कि मतलब मैंने बोला था, और उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज एब्सोल्युटली मोर देन 6%। जो वहाँ पे जिन्होंने दुकानें खोली हैं, बिल्डिंगें बनाई, उस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर गेटिंग आई थिंक 10% और मोर। वहाँ पे है उनकी वैल्यू, तगड़ी वाली वैल्यू मिल रही है उनको। एक्चुअली कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकलता भी है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डेवलपर की लीजिंग है। तो किस तरह की लीजिंग टीम हायर हो रही है, किस तरह का वो लीजिंग की ऑनगोइंग एक्टिविटी पूरे साल भर चलते रहना चाहिए। और एक ब्रांड की देखा देखी में ऐसे 10-100 ब्रांड, अगर आपका एंकर ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो पता भी नहीं चलता, अचानक मूवमेंट आ जाती है मार्केट में। जी, और लोग कह रहे हैं कि रिटेल में स्लो डाउन है, लोग नहीं जा रहे हैं, बट ब्रांड्स अभी भी
जो पुराना कस्टमर है, जो हर एक जनरेशन का कस्टमर, रिटेल इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो रिटेल को अभी भी चाहते हैं लोग कि टच एंड फील फिजिकल शॉप को विजिट करें। भले ई-कॉमर्स है, भले मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हर तरह की चीज़ें हैं। पीपल स्टिल वांट द टच एंड फील ऑफ अ रिटेल एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस। तो वो मुझे लगता है बंद नहीं होगा कभी। और ब्रांड्स, आप देखिए जो भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, मेक श्योर कि आप देखिए कौन-कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, कौन-कौन से ब्रांड एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि डेवलपर की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी इन्वेस्टमेंट वो लीजिंग टीम में कर रहे हैं। कि ब्रांड रिटेल प्रेजेंस इज मेड और ब्रोकन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द लीजिंग टीम। अगर लीजिंग टीम एक्टिव है तो आपके ब्रांड्स आते रहेंगे एंड दे विल फाइंड वैल्यू इन द प्रोजेक्ट। जैसे हमारा जो जो हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं हमारे, हम्म, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग 1,000 to 1,500 orders a day from online, हम्म, we as an old school people, we think that we are not doing great because we do not have a store, you हाँ, know, एक माइंडसेट होता है, है बड़ा ना? ग्लैमरस भी होता है, हाँ, we स्टोर do दिखना not have a चाहिए, store, हाँ, स्टोर दिखना we चाहिए। feel that thing यार store नहीं है हमारे हाँ पास. जी, हाँ जी। So we our next step is towards getting at least 4 stores in 4 big cities की 4 stores तो जरूर होने बहुत चाहिए. बढ़िया सर, विश ऑल द बेस्ट फॉर हाँ, दैट। हम चाहते हैं कि 4 स्टोर जरूर खुले हमारे हाँ किसी जी, भी तरह से. हाँ जी। What common mistakes do first time buyers make? Usually क्या करते हैं गलतियाँ वो लोग? So some common mistakes are depending on limited information and getting influenced by friends, family, and तू ले यार, मैं and तेरे को बता बहुत सही चीज़ हाँ, है. हाँ, ये सबसे बड़ी गलती, जल्दबाजी करते हैं लोग और हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। भले कहीं इंस्टाग्राम से किसी का उठा लिया, यूट्यूब का उठा लिया और बिना उनसे बात किए, बिना उनसे मिले, उस क्लिप को ही उन्होंने भगवान मान लिया कि वो क्लिप जो 1.5 मिनट में बताया, वही सब कुछ है, वही सत्य है और उसके आगे और कुछ नहीं है। तो वो एक गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए कि आप प्लीज़ रिसर्च करिए। जितना आप लिखा-पढ़त करेंगे उसमें, जितने एडवोकेट से बात करेंगे, जितना आप बार बार रिसर्च आप करेंगे। एडवोकेट का नाम ले रहे हैं. हाउ शुड आई फाइंड अ ट्रस्टेड एडवोकेट? ये बहुत बड़ा सवाल है. You can join communities of entrepreneurs. You can look up Google reviews of lawyers. आप ये यूजुअली देखो, लीगल प्रोफेशन ऐसा है कि आप सोलिसिट नहीं कर सकते लीगल एडवाइस। लॉयर विल नॉट से कि मेरे पास आओ, मैं बहुत अच्छा लॉयर हूँ। रियल एस्टेट कंसल्टेंट तो बोल सकता है कि मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे टेस्टिमोनियल हैं। बट एज पर देयर कोड ऑफ कॉन्डक्ट, सीएज, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज देयर सर्विसेज। दे दे कैन डू, नॉट सॉलिसिट बिजनेस। बट दे स्टिल डू. कंसील्ड एडवर्टाइजिंग हाँ करते हैं। हाँ. तो ये वर्ड ऑफ माउथ से होता है सर। वर्ड ऑफ माउथ से जो लॉयर आपके जान पहचान में है, ऑल आई एम सेइंग इज वाया लॉयर एंड वाया रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बिकॉज आपके जीवन की जमा पूंजी है। कोई हम 10-20 रुपए की बात नहीं कर रहे, हम 5-6-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इतने बड़े परचेज डिसीजन में एक प्रोफेशनल की सलाह नहीं ले रहे हैं, तो वो अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। True. इट इज़ दे विल बी योर ट्रस्टेड टीम रिसोर्स। आपकी अपनी टीम होंगी जो आपको सही और गलत एक ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड तरीके से बताएंगे। तो उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एक और समस्या जो नज़र आती है वो है रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम की. बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं, वो सोसाइटी ऐसी जहाँ पे बेसमेंट में पानी बचाता हाँ जी, हाँ है ना? जी। तो कैसे पता करें? मैं तो अभी एक फ्लैट ही खरीद रहा हूँ. हाउ डू आई नो कि इनका ड्रेनेज सिस्टम खराब है? तो कई बार ये चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंटली नहीं आएंगी आपको सामने। बट अगर डेवलपर के इरादे अच्छे हैं, तो आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं डेवलपर के या बिल्डर के, वहाँ जाके आप अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव यूज़र रिव्यूज़ देखिए, बायर रिव्यूज़ वेरी देखिए, गुड. खासकर हाँ. बरसात के मौसम में, हम्म. कि उनका क्या एक्सपीरियंस है हम्म. और उनको कैसे ओवरकम किया। तो अपने आप में एक नई दुनिया सामने आएगी। वो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। अगर वो कहें तो कि आपकी हमने सलाह ये है कि भैया निकल लो मार्केट में, देखो उस डेवलपर ने क्या क्या बनाया, लोगों से बात करो लोगों जिन्होंने से खरीद बात रखा करो, है. जितने लोगों से मिल सकते हो हम लोग, हम्म. जाके बात करो। और सबसे ज़्यादा आपको जो इंटरनल स्टाफ है ना बिल्डर्स के, वही बताएंगे। हम्म. वो आपको, मतलब प्यार मोहब्बत में लोग सब सच सच बता देते सही हैं। बात. तो आप सच को निकलवाने के लिए आप ग्राउंड लेवल पर जाओ। सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपर्स, ऑफिस स्टाफ, ये सब बताएंगे आपको सच्चाई, जो आपको कहीं पब्लिक फोरम और पे नहीं फ्री में बताएंगे। बताते हैं, पता नहीं हाँ, क्यों बताते हैं. आई डोंट बताएंगे। अंडरस्टैंड, दे टेल यू ऑल द आप टाइम. प्यार मोहब्बत में मन का रिश्ता जोड़ो उनके साथ, मन से संबंध जोड़ो, आपको सब बताएंगे सच सच। अच्छा एक बताइए, सर्कल रेट्स जो डिसाइड होते हैं भारत देश में, वो उसका निर्णय आता कहाँ से? कौन निर्णय लेता है सर्कल रेट क्या होगा? सो और वी बड़ा ऊपर नीचे होता है. कई बार मार्केट रेट नीचे होता है, सर्कल रेट ऊपर होता है. कई बार सर्कल रेट नीचे होता है, मार्केट रेट ऊपर होता है. इसको जरा डिटेल में समझाइए जनता के लिए. So, with all due respect, for government authorities, so circle rate is a rate at which जहाँ पे रेवेन्यू अर्न करती है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मल्टीपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। तो सर्कल रेट के ऊपर ही नॉर्मली आपकी रजिस्ट्री का रेट होना चाहिए। कई मार्केट्स ऐसे हैं, बिकॉज जहाँ पे कुछ रेजिडेंट्स ने अपनी एसोसिएशन बना के, जैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक ऐसा मार्केट है जो पहले कैटेगरी सी या डी में आता था कई साल पहले। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो बड़ा हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम बहुत मार्केट लोग हैं, हमारे सबके इतने मल्टीपल बिजनेस है, हमें तो कैटेगरी ए में लाइए आप। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, लड़े गए पूरे
रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक। तो उन्होंने कहा लो जी कैटेगरी है तथास्तु, आपको कर दिया कैटेगरी है। एज अ रिजल्ट वो मार्केट इतना शेकअप हुआ कि 5-6 साल तक मतलब द सर्कल रेट वाज मच हायर देन एक्चुअल मार्केट रेट। तो वो रेजिडेंट्स को लगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कि मतलब हमें लगा कि हम बहुत हाई प्रोफाइल है, बट ट्रांजैक्शन ही बंद हो गई। फिर मतलब उनको अपने अकाउंटिंग में लॉस इनकर करना पड़ रहा है ताकि उनकी प्रॉपर्टी बिके। सो इट बिकेम अ लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर कि किस तरह से मतलब आप लॉस दिखा दिखा के बुक्स में कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो। सो दैट डज नॉट मेक सेंस। सो एक सर्टन रेट सेट है कि जिसके रेट के आसपास आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, एंड these are the government has their own way of studying each micro market, और उनको लगता है कि ये मुनासिब रेट है एज पर मार्केट। सो we are operating in a country where we need to respect the government, so with all due respect to the authorities who are taking out the circulars. आपको जेवर वाले एरिया के बारे में पता है? सरकार ने वहाँ कंस्ट्रक्शन भी बंद करवाया है या कुछ आइडिया है उस पे आपको? See, we are dealing mostly in Gurgaon and Noida, Gurgaon and Delhi areas. Jivar ka, it's a very peculiar situation because there is, even in Delhi, the high-rise structures are not permitted due to safety restrictions for the airport. So I think the biggest concern by the authorities is possibly कि there should be no high-rise structures due to safe movement of aircrafts. So if there's any kind of, man-made tragedy that occurs, so the government wants to make sure that there is no high-rise structure, at least in a immediate radius of, it can be any distance side by the government. और बिल्डर फ्लैट्स और जो अपार्टमेंट्स, जो एक तो बिल्डर फ्लैट वो बड़े सस्ते होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और अपार्टमेंट्स बड़े महंगे होते हैं, ठीक है? तो कई बार होता है कि भाई मैं सस्ते के चक्कर में बिल्डर फ्लैट लेके फिर बाद में मुझे लगता है यार फंस गया मैं, है ना? तो आपके हिसाब से बेटर क्या रहेगा? बिल्डर फ्लैट भी ठीक हो सकता है या केवल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आदमी? सो हम कई सारी ऐसी फैमिली को मिलते हैं जहाँ की एक जनरेशन सोचते है कि हमें शांत एकांत चाहिए, हमें बिल्डर फ्लोर चाहिए, और हमारे मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए ऊपर नीचे के पड़ोसियों से। वो अपनी सोच है उनकी, एकांत वातावरण कुछ लोगों को पसंद है। ऑन द अदर हैंड अपार्टमेंट जो कम्युनिटी है, वी नोटिस अभी ज़्यादा ट्रेंड है कि यंग लोग हैं या इवन फॉर ओल्डर कम्युनिटीज़, इसेंशियली आपके नेचर पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी फीलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन अपार्टमेंट्स, और खासकर जो आज का फास्ट पेस लाइफ है जहाँ पे 24/7 लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बैकअप चाहिए, दे आर विलिंग टू पे इवन अ स्लाइटली हायर अमाउंट टू गेट दी फैसिलिटीज़। यस वी डू। और सिक्योरिटी लोगों को चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी। देर आर मैनी पीपल, आई न्यू वन फैमिली, दे वर लिविंग इन ओल्ड गुड़गांव। वो कहते हैं हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं काम पे, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कॉलोनी में। अगर कुछ भी हो जाए हादसा, वी विल ब्लेम आवरसेल्फ, विल बी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 500 गज की कोठी बेची। उन्होंने कहा हमारे इतने खर्चे हो जाते हैं मेंटेन करने में, कभी वाटर सीप्स किसी दीवार पे आ रही, कभी किसी पे, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। सो दे फॉर देम अपार्टमेंट वाज अ लॉजिकल चॉइस कि एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई, गेटेड सिक्योरिटी मिल गई, 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम मिल गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप मिल गया, और सबसे बड़ी जो खुशी होती है उनको कि सारे त्यौहार वो एक साथ मनाते हैं। कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, देर आर सम वेरी वेलकमिंग मेंबर्स, और मतलब कई त्यौहार सारे साथ में मनाते हैं, उनका उठना बैठना साथ में, दे हैव अ लॉट ऑफ, दे आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस आल्सो अमंगस्ट देमसेल्व्स। तो ये कम्युनिटी लिविंग हमने देखा अपार्टमेंट्स में बहुत एक्टिव है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे घर के पास एक ऋषि अपार्टमेंट होता था अलकनंदा। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त होता था, उसका बचपन वहीं पे था। वो मतलब उसके घर जाते थे, हम इतने खुश होते थे कि वो उस टाइम घंटियाँ बजाते थे ना घरों में जाके। वो कहते अगर हम घंटी बजाते हैं, हम हमारे 8-10 दोस्त हैं, सब घंटी बजा के, सब शाम का टाइम फिक्स है कि 5 से 7 बजे सबको खेलने आना। सो जो बच्चे अपार्टमेंट में बड़े होते हैं, सेंसेस दे आर मच मोर वेल बॉन्डेड अमंग देयर पीयर ग्रुप, एंड इट्स अ वेरी कंड्यूसिव प्लेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उनकी बचपन की दोस्तियाँ ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती हैं। सो दीज आर एडवांटेज इन अपार्टमेंट्स। हालांकि बिल्डर फ्लोर और बंगलों में जो कुछ लोग रहते हैं, पावर आउटेजेस, पावर ब्रेकडाउन इतने फ्रीक्वेंट है कि कई लोगों को डीजल जनसेट में लूज डीजल कई जगह बैंड है, तो वो जाने के लिए आपको कहीं 10-12 किलोमीटर दूर कोई पेट्रोल पंप से सेटिंग करके आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, तब आप डालेंगे जनरेटर में। ये कुछ लॉजिस्टिक्स इशू होते हैं बिल्डर फ्लोर बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने एक बार, लाइक वी लिव इन एन अपार्टमेंट, तो हमने सोचा था कि लेट्स बाय अ लैंड। तो एक जो गौर वाले हैं उनकी ना वहाँ पे हिंड नदी के पीछे उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उन्होंने बहुत सारे वो बना रखे हैं। तो 12-12 बीघे का एक प्लॉट वो बेच रहे थे, लाइक इस काइंड ऑफ फार्म हाउस बना लो, ये कर लो। सो वी वेंट टू बाय दैट, एंड देन वी रियलाइज्ड, माय वाइफ सेड कि बच्चे छोटे हैं, यहाँ कोई होगा ही नहीं। मतलब 12 एकड़ का आपने बाउंड्री बना लिया, 12 बीघे की आपने बाउंड्री बना ली, घर बना लिया, खेलेंगे किसके साथ हो? आप समझ रहे हो? अकेलापन हो जाता हाँ, है, there's no चलो community हाँ, feeling. कि डीडी वीजी तो चलो वो गौर वाले ने बोला था कि वो सब हम देंगे, बिजली और उसका हम करेंगे।
ठीक है, बट वो जो फीलिंग थी ना कि यार बच्चे जाएंगे कहाँ, क्योंकि You need छोटे हैं that अभी। sense of हाँ, community. तो वो था, तो उस वजह से हमने नहीं डिसाइड किया कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं अभी। आपने मुझे सारा समझाया कि भाई कैसे आदमी को और जब ज़मीन नई नई खरीद रहा है तो किन चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी केयरफुल अबाउट। लेट्स से गांव में ज़मीन खरीदने चला गया वो, हम्म, बहुत सारे गांव हैं, दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं, हम्म. गांव में कोई ज़मीन लेने जाए तो किन बातों से ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो जो पटवारी है, जो ज़मीन को बांधते हैं लोग, हम्म, उनका हालचाल, मतलब उनका जो है चाल चलन कैसा है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, अच्छा। और पास में रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जो उनकी डील कर रहे हैं पीछे, उनका हम्म, काम साफ सुथरा है कि जो एक नहीं। ही ज़मीन को जो 5-5 लोगों को बेच देते हैं, वो भी तो केसेस देखे हैं वो हमने। केसेस होते हैं, इसीलिए हम कह हाँ, रहे हैं कि आपके सावधानी बरतिए। अच्छा। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे हम्म, तो उस केस में आपको फिर यू विल गेट द वन एट आपको कोई लॉस। एग्जाम्पल मिला ऐसा कि एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेच लिया हो किसी व्यक्ति ने? देखो, हम तो ऐसी ज़मीनों में डील करते नहीं हैं, बट दैट्स उदाहरण आपने सुना हो केसेस बिकॉज बहुत यू आर होते हैं। इनटू दिस ओनली। केसेस बहुत होते हैं, इसीलिए आपको ज़रूरत आ जाती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप चेक करिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप चेक करिए कि किसी और के नाम पे ज़मीन तो नहीं है। अब भले ही उसने अनऑफिशियली बेच दिया 5 लोगों को, हम्म, बट रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसके नाम पे? ऑफिशियल प्रूफ तो यही है ना लीगल रिकॉर्ड्स में, हम्म, कि गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसके नाम पे चढ़ी है। दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो अगर वो टाइटल क्लियर है तो वो आप अकेले भी नहीं जा पाएंगे, जो वहाँ बाहर डॉक्यूमेंटेशन वाले एडवोकेट हैं। इसलिए एडवोकेट का काम दोबारा आता है, क्योंकि उन्हीं को एक्सेस है कि भले आप जो भी उनका खर्चा पानी है वो आप दीजिए, एंड गेट द वर्क डन इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फुल प्रूफ मैनर। तो जो लीगल रिकॉर्ड आप चेक कराएंगे फुल प्रूफ, वो आपको चेक कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रॉपर्टी पेपर पे ही बिकती है। तो अगर आपके पेपर्स क्लियर हैं, देयर इज़ नो बिगर लीगल प्रूफ। एक बात और बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था अचानक से, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे समझ के बाहर होते हैं। फिर फैसला आया था उनका, उसमें उन्होंने कहा कि 12 साल तक आप किराए पर रह लीजिए, घर आपका है। ऐसा कुछ सुना था मैंने, ये सच है या इसमें भी गेम है? तो अगर ऐसी ही बात है तो सेल्स का फायदा क्या है भाई? फिर ठीक है 12 साल के दिन रह लिया, हो गया इट उसका। विल कम विद सम प्रोज एंड इसमें फाइन प्रिंट आप देखिए। एक बार गूगल करना जरा, इस हाँ। कोर्ट का क्या फैसला था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लिमिटेशन एक्ट 1963, the Supreme Court of India has held that under India's Limitation Act 1963, a person who continuously, openly, and hostilely This is a possesses private a private immovable property for 12 years may acquire legal ownership through adverse possession, providing the actual owner takes no legal action to reclaim the property within the period. This principle aims to provide certainty and stability in property matters, but it requires the possessor to prove specific elements like continuity, publicity, hostility to establish their claim. Adverse possession के key principle हैं continuous possession, open and notorious possession, hostile possession. Like, why are they supporting hostile possession? The possession must be hostile, meaning it is without the permission of the true owner, and the occupant intends to claim ownership for themselves. What the hell is this? Like, ये तो बहुत ही why would it like गुंडागर्दी से घुस जाओ फिर वापस मत करो? it makes you question why are you respecting the Supreme Court. रोल ऑफ द ओनर। अरे वो कह रहे हैं कि तू अगर जैसे मान लेते हैं कि माँ बाप मर गए, किराए पे था सामान, माँ बाप मर गए, बच्चा छोटा है, ठीक है, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, वो किराया लेते रहे और भूल गए। तो कह रहे हैं कि फिर उसको किराएदार को पकड़ा दो, क्योंकि बच्चे को बड़े होने में तो 12 साल का समय बच्चा 2 साल का है, 12 साल बाद भी वो तो 14 का ही होगा, समझ रहे ना? तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। Actually, it also depends on the family circumstances कि hostile possession है। नहीं, हॉस्टल पर किराएदार के लिए बोल रहे हैं ना, किराएदार ने ले लिया। जैसे गाजियाबाद में बीच में हो रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग गाजियाबाद की स्टोरी। गाजियाबाद में कोठियां बनी है बहुत सारी, एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी कोठियां बनी है। वहाँ के लोग क्या थे, कनाडा चले गए, ठीक है, और कोठियां उन्होंने किराए पे दी, कुछ लोगों ने खाली छोड़ी। तो 2 लॉयर्स, बहुत स्मार्ट लॉयर्स, ये कोठियां हम दोनों ने आपस में बात करी और मैंने क्लेम डाला आपके ऊपर कि ये कोठी इसकी नहीं मेरी है। आप समझ रहे हो, हम दोनों मिले हुए हैं, डाल दिया बस। कोर्ट में क्लेम डाला, ये कोठी है किसी बंदे की, उसको पता भी नहीं बेचारे को। मैंने कोर्ट में क्लेम डाला कि ये कोठी इन भाई साहब की नहीं मेरी है, और आप मेरे साथ केस लड़ने आ गए वहां पे कि नहीं ये तो मेरी है। आप समझ रहे हैं? कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ने आपकी साइड देखी, मेरी सामने सब कुछ अपनी तैयारी कर रखी है, बिजली का बिल देखा, ये देखा, वो देखा, और बोला कि कोर्ट ने बोला या तो आपको दिया तो मुझे दे, कोई ना कोई जीते केस। तो कोर्ट एक आदेश में देता है लिख के ना कि ये कोठी आपकी हुई। अब मैं इस कोठी में घुसता हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोर्ट का लिखा हुआ आदेश है। आप समझ रहे हो ना कि ना आपकी कोठी है ना मेरी, किसी कोठी नहीं भाई, कोई बंदा कनाडा में रह रहा है। फिर मैं घुसता हूँ, मैं कब्जा कर लेता हूँ। अब जो कनाडा वाला लौट के आता है वो मेरे खिलाफ नया केस डालता है। फॉर द टाइम बिंग आई एम लिविंग इन दिस, आई एम गेटिंग माई बिजली का बिल, आई एम गेटिंग माई पानी का बिल, आई एम जस्ट ऑक्यूपाइंग इट। कनाडा वाले को और लेट हो गया तो मेरी हो गई ये कोठी।
ये गेम बहुत चला है गाजियाबाद में, कई कोठियों पे लोगों ने कब्जा करें ये कर करके। हाँ ये तो एसेंशियली गलत है, देखो ये तो बेईमानी हो गई ना, बिल्कुल भी मैंने एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी हो हाँ गया, हाँ हाँ तो ये लीगल लूप होल लोग निकाल रहे हैं, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ऑर्डर इशू किया सो वी हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट ऑर्डर, बट एसेंशियली कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि रेंट जो मिल रहा है, जो पगड़ी सिस्टम में रेंट मिलता था ओनर्स को, वो ऑलमोस्ट 100-150 साल से वैसे ही चला आ रहा है लोगों का। मुंबई वाले जो अपार्टमेंट्स हैं नरीमन पॉइंट के सामने बिल्डिंगें हैं, 5 रुपए किराया है। बिल्कुल सोचिए सी फेसिंग 5 रुपए किराया हाँ दे जी रहे हैं अभी हाँ भी, जी बिल्कुल ठीक है, है ना। हाउ सैड इज दिस। या सो लोग वेट कर रहे हैं उन किराएदारों के मरने का, एब्सोल्युटली, बट डोंट यू थिंक दैट सम पीपल विल पे कि किल देम यार, कितना वेट करेंगे, पता चला मर ही नहीं रहा बुड्ढा। देखो ये किसके मन में क्या है, क्या उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं। Once I was टैक्सी वाला, टैक्सी में बैठा मैं, टैक्सी वाला मी एंड माय वाइफ वर सिटिंग इन द टैक्सी, टैक्सी वाला अचानक शुरू हो गया मेरे से, कह रहा भाई साहब आप तो एक मेरे पास आइडिया है, मैंने कहा बोल। तो कहता है भाई साहब एक ना अंकल आंटी हैं जो जिनका घर है उनके नाम पे है, उनके बच्चे उनको पूछते नहीं है, अंकल आंटी मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन वो जो है अगर आप भी साथ मिल जाते मेरे, सुनिए उसकी बात, अगर आप भी साथ, ही डजंट वांट टू किल देम, ही सेड कि अगर आप साथ मिल जाते तो लीगली मैं अपने नाम पे ले लेता उस घर को, अंकल आंटी मेरे नाम कर देंगे, तो मैं लीगली अपने नाम पे ले लूंगा, तो फिर उसके बाद फिर यू नो फिर अंकल आंटी जब तक मैं उनकी सेवा करूंगा जब तक वो रहेंगे, उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। और एंड देन ही टोल्ड मी कि 50% यू टेक, एंड आई वाज लाइक यार आइडिया तो टेम्पटिंग है। नहीं आई डिडंट थिंक लाइक दैट, आई वाज लाइक भाई मेरे अभी तेरे टैक्सी में आके बैठा हूं, तो क्यों मुझे ज्ञान मिल रहा है बिना मतलब कि कोई लॉजिक नहीं, तो चल जीवन पाता की है। दिशा बोलने वाली बात हाँ है। बिना मतलब की बकवास। ठीक है, बट लोग हैं, ये मुझे इसकी बात सुन के मुझे लगा कि अगर इसके दिमाग में आइडिया आ सकता है तो देयर विल बी पीपल हु वुड बी लुकिंग फॉर सच होम्स, डोंट यू थिंक। जैसे कालका जी है, और जीके का तो नहीं पता, एक और एरिया है ना क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे वृद्धों को मार भी दिया गया, डिफेंस कॉलोनी। बहुत लोग, हाँ लॉयर्स का कार्टेल है बहुत बड़ा, हाँ तो लॉयर्स का भी और डोमेस्टिक हेल्थ का बहुत बड़ा कार्टेल है, हाँ कि वहाँ भी लगभग हर दूसरे घर एनआरआईज हैं लोग, हाँ, तो वहाँ भी तो बहुत वहाँ पे भी यही हो रहा है जो बहुत मैं सोच बहुत रहा हूँ। कहानी है। हाँ वहाँ तो मतलब फोर्सफुली लोग विल भी लिखवा रहे हैं कि अपने नाम पे कराएं प्रॉपर्टी, तो द पर्सन इज नॉट इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, वेरी सैड स्टोरी। बट ओके ऑलराइट, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को गधा बना के विदेश भेजा कि जा विदेश में, ताकि हम यहाँ 4 लोगों को बता सकें माय सन इज इन अमेरिका दीस डेज, सेटल हो गया अमेरिका में वो, है ना, वो डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से। माँ बाप को अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहिए ताकि वो उनका भी ध्यान रख सके, वरना मैं इतनी सारी कहानियां सुन चुका हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, बड़े सारे लोगों ने आके बताया कि बेटा कनाडा चला गया था, माँ ने बेटे को फ़ोन मिलाया, बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया और माँ मर गई, तो अब वो 3 महीने से मरी हुई, तो हड्डियों कंकाल कंकाल, लेकिन फ़ोन हाथ में पड़ा हुआ है क्योंकि फ़ोन मिलाया था बेटे को, उसी समय मर गई थी। ठीक है, ऐसी भी कहानियां सुन रखी हैं मैंने। तो जिन माँ बाप को ये लगता है उनका बेटा विदेश जा रहा है तो बहुत तीर मार रहा है, मेरे हिसाब से उनको शीशे में दोबारा अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि क्या आपके साथ भी ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक पुलिस वाले एसएचओ थे, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया था कि उन्होंने फ़ोन किया बेटे को, मरी हुई मिल रही 4 दिन से सड़ रही है, फ़ोन किया कि भैया आके अपनी मम्मी को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाइए। बेटे ने बोला कि अब कहाँ आएंगे, टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बेटी को फ़ोन किया, बेटा यूएस था, बेटी कनाडा थी, बेटी ने मना कर दिया कि मैं भी कहाँ आ पाऊंगी, आप लोग कर दीजिए। एसएचओ ने फिर बेटे को दोबारा फ़ोन मिलाया और बेटी को भी कहना अब इनका घर लेने आना तुम दोनों, कोठी बेचने आना, बेचने दूंगा, जितने दिन तक मैं इस एरिया का एसएचओ हूँ तुम नहीं बेच पाओगे कोठी, और उसे नहीं बेचने दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला आप समझ रहे हो ना बात। तो ये जो दोनों तरफ से है, ये कैसे बच्चे थे जिनको माँ बाप, मेरे पिताजी 81 वर्ष की उम्र में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, 83.5 में उनकी डेथ हुई, लगातार 2.5 साल में साथ रहे वो, मतलब आज भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ उनके बारे में सोच, डिप्रेशन में हूँ अभी भी मुझे दिख जाते हैं वो, डिप्रेशन में चला जाता हूँ मैं कि मेरे पिताजी चले गए। देखा जाए तो ये परम धर्म है, माँ बाप की सेवा करना ही परम धर्म। हाँ बट लोगों का दिमाग खराब है भाई, क्या करोगे आप। ये एक्चुअली माँ बाप की गलत सोच है कि बाहर जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे गांव में एक कज़न ब्रदर है मेरा, उसका बेटा कहीं अमेरिका में कोई किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो इतना प्राउड है कि मेरा बेटा, एक लौता लड़का है उसका, कोई नहीं है उसके, अकेले पति पत्नी रह रहे हैं, पर उसका वो खत्म ही नहीं होता उसकी तारीफ में बेटे की कि मैं, अच्छा मैंने ये भी देखा है, अनाथ आश्रम में चले गए माँ बाप, बेटे की कमियों को बहू पे डाल देते कि बहू खराब, बेटा तो महान है मेरा, ठीक है ना। एनीवेज, क्योंकि रियल एस्टेट की चर्चा हो रही थी, तो जो इस तरह के माँ बाप बेचारे मर जाते हैं उनकी रियल एस्टेट पे भी कब्जे होते हैं, रियल एस्टेट कब्जे हो जाते हैं उनके। इवन चलो मान लिया जो एसएचओ मुझे बता रहा था ईमानदार रहो, क्या पता कोई और एसएचओ जो बोले कांडी को देते हैं इनका, है ना।
चलिए, it was wonderful talking to you. Thank you very much It was for your time. genuinely a pleasure speaking to you. I hope कि लोगों को समझ में आए हाँ कि जी। प्रॉपर्टी लेने से पहले रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, फिजिकली जाना वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ कहाँ जी, पे ले रहे हो, क्या है, बिल्कुल। कैसे है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, Thanks, थैंक यू, thank you, thank you.